In the previous class, we have studied about how a subsistence crisis happens and also about a growing middle class envisages an end to privileges. In today's class, we are going to study about the outbreak of the revolution and also about that how France becomes a constitutional monarchy. The outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General which would then pass his proposals for new taxes. The Estates General was a political body to which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of his body. The last time it was done in 1614. प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था कि लुई 16 ने जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए थे। हम ये सोच सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन टैक्सेस को बढ़ाया होगा। अगर हम प्राचीन जो है रिजीन यानी प्राचीन राजतंत्र की बात करें तो जो फ्रांसीसी जो सम्राट होता था, जो फ्रांस का जो है किंग होता था, ठीक है, उसके पास जो है अपनी मर्जी से वो कोई भी कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसको जो है वो स्टेट जनरल्स मतलब प्रतिनिधि सभा की एक जो है बैठक बुलानी पड़ती थी, जिस पे उसमें अपने करों के जो उसके टैक्सेस को जो वो इम्पोज करने वाला होता था उसके लिए उसको मंजूरी उनसे लेनी होती थी। जो ई स्टेट जनरल होते थे वो एक पॉलिटिकल बॉडी होते थे, ठीक है, एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें जो है तीनों स्टेट्स के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। तीनों स्टेट के लोग जो है वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पे भेजते थे, ठीक है। वहाँ पे जो मोनार्क होता था वो अकेले डिसाइड कर सकता था कि कब वो उसे जो है वो ई स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी है। जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी। On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposals for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second estates sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each others on two sides, while the 600 members of the third estate had to stand at the back. The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए टैक्सेस को लेकर के उसके प्रस्ताव के लिए जो है स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाई थी। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी जो उनको होस्ट करने के लिए एक बहुत ही आलीशान सा भवन था, उसको जो है वो सजाया गया था वर्साई में। पहले और दूसरे स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, ठीक है, इस बैठक में उन्होंने अपने 300 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे, जिनको आमने सामने जो है वो बिठाया गया था। और जो थर्ड ई स्टेट्स के मेंबर थे उनके जो है टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जो उनके पीछे खड़े थे, फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के पीछे, ठीक है। और जो तीसरे ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड थे, ठीक है। विमेंस और जो मतलब जो औरतें थी, किसान थे और जो कारीगर थे, उनको जो है एंट्री असेंबली में एंट्री जो नहीं मिलनी थी, उनको डिनाई किया गया था इस चीज़ के लिए। और जो टोटल जो है लोगों की जो भी ग्रीवांसेस थे और डिमांड थे, ठीक है, उसको जो है 40,000 लेटर्स में जो है लिखा गया था, जो वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने साथ में लेकर के आए थे। Voting in the Estates General in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly in protest. जो वोटिंग होती थी ई स्टेट जनरल की पास्ट में, उसमें क्या होता था, इस प्रिंसिपल पे वोटिंग होती थी कि हर ई स्टेट से एक वोट आएगा, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ था, लुई 16 ने भी ये सोचा था कि जो पहले चलता था कि हर ई स्टेट से जो है एक वोट आता था, 3 ई स्टेट से तो 3 वोट आता था, तो उसने सोचा था कि इस बार भी हम सेम चीज़ ही करेंगे। लेकिन जो थर्ड ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये मांग रखी थी कि अब इस बार जो है सबका मतदान कराना चाहिए, मतलब सबकी वोटिंग लेनी चाहिए, मतलब हर एक मेंबर, जैसे कि 600 मेंबर्स आते, हर
मतलब हर एक मेंबर की जो है मत वोट देने का जो है पूरा राइट होगा। ये एक जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि जो है रूसो ने अपनी बुक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें लिखा था। ठीक है, जब किंग ने जो है इस जो ये प्रपोजल था थर्ड ई स्टेट्स मेंबर का, इसको जब रिजेक्ट कर दिया तो जो थर्ड ई स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इसको जो है प्रोटेस्ट में, मतलब इसके विरोध में जो है वो जो असेंबली थी उससे वो उठ के बाहर चले गए थे। The representatives of the Third Estate viewed themselves as spokesperson for the whole French nation. On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé Sieyes. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of a need to do away with a social of a feudal privilege. He brought out a general and delivered powerful speeches to crowd assembled at Versailles. Abbé Sieyes, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड ई स्टेट के, वो खुद को जो है वो पूरे होल फ्रेंच नेशन का स्पोक पर्सन जो है वो स्पोक्समैन समझते थे। ठीक है, 20 जून को वो जो है असेंबल हुए थे एक हॉल में इंडोर टेनिस कोर्ट के, जो कि वर्साई के ग्राउंड में था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने खुद को जो है एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने ओथ ली थी कि जब तक वो जो किंग की किंग के जो पावर है उसको कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं कर लेते, तब तक जो असेंबली है नेशनल असेंबली, उसको भंग नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा। उनका जो लीड थी वो मिराबियो और आबे सीए ने किया था। ठीक है, मिराबियो एक जो है नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनको जो इस चीज़ से मतलब वो समाज में जो है लोगों को जो नोबल परिवार को जो स्पेशल राइट्स मिलते थे वो इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को वो प्रमोट करते थे कि हाँ इसको ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने एक जर्नल निकाली थी और वो उनकी जो है मतलब पावरफुल जो स्पीचेस थी वो जो भी वर्साई में जो भी भीड़ इकट्ठा होती थी वहाँ पे वो अपनी स्पीचेस डिलीवर करते थे। आबे सिए जो है एक फादर थे, जो है प्रीस्ट थे, और उन्होंने जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट मतलब प्रभावशाली एक प्रचार पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था कि तीसरा स्टेट क्या है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest, the price of bread rose, often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. जब नेशनल असेंबली के जो लोग थे वो वर्साई में जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, उस टाइम पे जो है पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से जो फसल थी वो पूरी ख़राब हो गई थी और जो पाव रोटी की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जो बेकरी के मालिक थे वो भी जो इसका फ़ायदा उठा रहे थे और जो है वो सप्लाइज़ को रोके हुए थे। बहुत देर तक, काफ़ी घंटों तक जो है लंबी लाइन में बेकरी के बाहर खड़े होने की वजह से जो कुछ औरतें थी वहाँ की, वो गुस्से में जो है वो क्या की थी कि वो बेकरी की जो है दुकान पे उन्होंने धावा बोल दिया था। और दूसरी तरफ जो उसी वक्त जो राजा था उसने सेना को जो है पेरिस सिटी में एंटर करने का आदेश दे दिया था। तो जो भीड़ थी उसने 14 जुलाई को, जो गुस्से में थी, उसने 14 जुलाई को बास्टील के किले पे धावा बोल के उसको पूरी तरह से तोड़ दिया था। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. Caught in the frenzy of feats, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Chattox. They looted hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. जो देहाती इलाके थे और जो वहाँ पे गांव थे उनमें सब में जो अफवाह फैल गई थी कि जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, उन्होंने भाड़े पे जो है मतलब लैंड उन्होंने लोन भाड़े पे जो है कुछ जो है लुटेरों के गुरोह को बुला लिया जो पकी फसल को ख़राब करने के लिए आने वाले हैं। और इतना ज़्यादा आतंक फैल गया था किसानों में कि वो कुदाल और बिलचे ले करके जो ग्रामीण किले थे वहीं पे उन्होंने हमला कर दिया था। जो भी अन्न था जो स्टोर करके रखा था, जो भी अनाज को, उसको उन्होंने लूट
डायरेक्टली, और जितना भी जो है लगान से रिलेटेड जो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको जला दिया था। जितने जो भी नोबल्स थे, ठीक है, ज़्यादातर नोबल्स क्या कहते हैं कि वो अपनी अपनी जो है वो जो उनकी जागीरें थी वो छोड़ छाड़ के सब वो भाग गए थे, और कुछ ने जाके पड़ोसी देशों में जो है वो वहाँ पे माइग्रेट करके चले गए थे, वहीं पे जाके शरण ले ली थी। Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked on by Constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy were too forced to give up their privileges. Thefts were abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. लुई 16 ने जब जनता को इस तरह से रिवोल्ट करते देखा तो उसने जो है रिकॉग्निशन दे दी नेशनल असेंबली को, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो है अब उसका जो पावर होगा वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल पे चलेगा, उसको चेक किया जाएगा। 4 अगस्त 1789 को जो है रात में असेंबली ने एक डिग्री पॉलिश की थी जिसने अबॉलिश किया था जो फ्यूडल सिस्टम था, और जो फ्यूडल सिस्टम के ऑब्लिगेशन थे और जो भी कर था उसको लेकर के उसको अबॉलिश कर दिया था पूरी तरह से। जो मेंबर्स थे फर्स्ट मतलब जो पादरी समूह के लोग थे, ठीक है, उनको फोर्स किया गया था कि वो अपने जो स्पेशल राइट्स है वो उनको जो है वो छोड़ दें, और जो चर्च का जो टैक्स लगता था 30 वाला जो टैक्स था उसको भी एबॉलिश कर दिया गया था, और जो भी लैंड जो चर्च के अंडर में आता था वो भी छुड़ा लिया गया था। ऐसे करने से क्या हुआ, इसके रिजल्ट से जो गवर्नमेंट थे उसके पास जो है टोटल जो है 2 बिलियन लिवरेज के जो अकाउंट में आ गए थे गवर्नमेंट के अकाउंट में। France becomes a constitutional monarchy. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. In the figure, you can see how the new political system worked. नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग थी वो 1791 में पूरी कर ली थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि जो किंग है उसके जो जो मोनार्क है उसके पावर्स को लिमिट में करना, मतलब उसकी शक्तियों को जो है सीमित कर देना, ठीक है। ये जो पावर थे अब सिर्फ जो है एक जगह पे ना होकर के अब जो है उसको डिफरेंट जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनमें डिवाइड कर दिया गया था, जैसे जो कि थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था। इन जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो किस तरीके से काम करता था। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn chose the Assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizen, that is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as passive citizens. To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने लॉ बनाने के लिए जो है उसका जो राइट था वो नेशनल असेंबली को दे दिया था, ठीक है। नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली चूज़ की जाती थी, जो एक जो है सबसे पहले जो है एक इलेक्टर का ग्रुप जो है वो चूज़ किया जाता था, फिर बाद में वो असेंबली में उनको सेलेक्ट किया जाता था। हर सिटीज़न के पास ये राइट नहीं था कि वो वोट करे, सिर्फ जो वो आदमी जो कि 25 साल से जिनकी एज ज़्यादा थी और जो है इतना टैक्स पे करते थे, जो मतलब जो 3 दिन कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का जो टैक्स देते थे उन्हें ही वोट देने का राइट था। और जो रेस्ट ऑफ द जो मेन और वीमेन थे उनको जो है वो पैसिव सिटीजन्स की तरह से उन्हें रखा गया था। इलेक्टर बनने के लिए जो है लोगों को एटलीस्ट जो असेंबली इलेक्टर बनने के लिए और साथ ही साथ जो है मेंबर बनने के लिए असेंबली के लिए हर व्यक्ति को जो है कम से कम उच्चतम श्रेणी जो टैक्स पेयर्स थे उनकी उच्चतम श्रेणी से बिलोंग करना ज़रूरी था। The Constitution began with a declaration of the rights of man and citizen. Rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belonged to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. कॉन्स्टिट्यूशन था वो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा
पत्र मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन से एंड सिटीजन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसमें जीवन का मतलब राइट टू लाइफ में जीवन जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, ठीक है, आप अपना ओपिनियन रख सकते थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानूनी बराबरी का अधिकार। ये सारे अधिकारों को जो है क्या बोलते हैं, नेचुरल और इनएलेबल राइट बोला गया था कि ये सारे लॉ जो है वो हर ह्यूमन बीइंग जो है इससे बिलोंग करते हैं, बाय बर्थ ये हर व्यक्ति को दिया जाएगा और ये किसी से भी लिया नहीं जा सकता। ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो हर सिटीज़न का जो नेचुरल राइट है उसको प्रोटेक्ट करके रखे। That's it for today's class. Thank you.